Hello everyone. Now, today in this video we have to start the discussion of transduction. Let's start with definition. जैसे कि इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है अनलाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं, इन विच द नेकेड डीएनए इज ट्रांसफर इन ट्रांसडक्शन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं, इसमें जो नेकेड डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है, इसमें जो नेकेड डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो ट्रांसफर हो रहा है इन ट्रांसडक्शन में, ठीक है। और जो डीएनए है वो किससे कैरीड आउट हो रहा है? बाय द बैक्टीरियोफाज। और वी कैन से दैट इन सिंपल वर्ड दैट इन ट्रांसडक्शन, इस ट्रांसडक्शन में जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेल टू सेल, डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू सेल through the agency of virus. Here agency of virus means through the help of bacteriophage. With the help of bacteriophage, DNA is transferred. With the help of bacteriophage, DNA is transferred from cell to cell. DNA is transferred cell to cell with the help of bacteriophage in the bacteria. And this whole process is known as transduction. Okay. All phases can be transducer, not all bacteria transable. It means that जितने भी बैक्टीरियोफाज हैं वो ट्रांसडक्शन कर सकते हैं, वो ट्रांसडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो डीएनए को सेल टू सेल ट्रांसफर कर सकते हैं। पर सारे बैक्टीरिया ट्रांसड्यूसेबल नहीं होते, मतलब सारे बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट नहीं कर सकता। It simply mean that. Okay. Now come to the examples of bacteria, in which we have to discuss what types of bacteria and the types of bacteria which are in transduction. Okay. So let's start. Transduction has been found to occurs in a variety of prokaryotics. Means जो ट्रांसडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स में होता है. As we know that all the bacteria are under the category of prokaryotic. So here are the some examples of the bacteria in which the transduction process is occurs. Okay. Now come to know the history of transduction and come to know how the transduction was discovered and what was its history. Firstly, the transduction was discovered by Johannes Lebers and the Norton Ginzer in the year 1952. Okay, and how it was discovered? And it was studied or it was discovered in the Salmonella bacteria. That is the Salmonella genus of bacteria in which the transduction was first discovered. Okay, there was an experiment discovery that we have to know, and that we have to know, that is about the U-tube experiment. ठीक है, and this was the experiment that found that the part of cells on one side of U-tube were prototropes, which means that in the minimal medium. So let's discuss this experiment, and by this experiment the discovery of transduction is done, and it is a unexpected discovery. It means ये डिस्कवरी की उम्मीद नहीं थी कि ट्रांसडक्शन कुछ होता है, ये डिस्कवरी ऐसे कुछ होगी, पर ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी वजह से इन्हें ये सब पता चला कि ट्रांसडक्शन है। और ये जो पता चला वो सबसे पहले पता चला सैल्मोनेला जीनस के बैक्टीरिया के अंदर। ओके, नाउ come to know what is that experiment. In this experiment, as we see that there was a flask, that is a U-shaped flask. So this experiment is known as U-tube experiment, and this yellow portion is the medium. ठीक है, and media is passed from this here and this goal is the filter in which the media can pass but shall not pass. ठीक है, मीडिया पास हो सकता था बट सेल पास नहीं हो रहे थे। इधर की साइड में हमने स्ट्रेन लिया LR2 का, जिसमें फिनोप्थलीन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन और हिस्टोनिन के थे। ये सारे प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट थे और इस स्ट्रेन को हमने बोला LR2। और इसको जब हमने प्लेट के अंदर डाला तो हमने देखा कोई ग्रोथ नहीं है। जब हमने इसको मिनिमल मीडियम में डाल के इंक्यूबेट किया प्लेट के अंदर पोर करके, तो हमने देखा कि इस पे कोई भी ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं आई।
पर जब यहाँ जो ये वाला स्ट्रेन था, जो कि हमारा क्या था, स्ट्रेन LA22, जिसके अंदर फिनोप्थलीन नहीं था, ट्रिप्टोफैन नहीं था, इसके अंदर कौन कौन थे, मिथियोनिन और हिस्टोन ही थे, और यहाँ पे मिथियोनिन और हिस्टोन नहीं थे, यहाँ पे वो दोनों थे। तो जब मिथियोनिन और हिस्टोन जिसमें प्रेजेंट थे स्ट्रेन LA22 में, जब उसको हमने मिनिमल मीडिया पे पोर करके और उसको इंक्यूबेट किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे प्रोटोट्रोप्स की ग्रोथ प्रेजेंट थी। मींस प्रोटोट्रोप्स की ग्रोथ में, अब इनकी ग्रोथ में कौन कौन थे, फिनोप्थलीन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट थी। तो इसमें हमने देखा कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जिसमें इस स्ट्रेन के अंदर तो फिनोप्थलीन और ट्रिप्टोफैन नहीं थे, इस स्ट्रेन के अंदर फिनोप्थलीन ट्रिप्टोफैन नहीं थे, पर जब हमने इसको ट्रांसफर किया और बैक्टीरिया की ग्रोथ आई तो हमने देखा कि इनमें ये दोनों चीजें भी प्रेजेंट है। और ये दोनों चीजें फिर किसकी वजह से प्रेजेंट हुई, तो ये इसमें हमने जब इसकी स्टडी की, हमको ये पता चला कि इसमें ट्रांसडक्शन हुआ है, मतलब इसमें डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हुआ है, जिसमें फिनोप्थलीन और ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस फिर ये ग्रोथ में दिखा रहा है। सो दिस वाज द हिस्ट्री एंड डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसडक्शन, एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंट इज नोन एज U2 एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ U। चलो अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म कैसा होता है। तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन में था कि जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, राइट। जब डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है थ्रू द एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया एंड फाज का मीन सीड। तो बैक्टीरियोफाज is a virus that eat the bacteria, that is infect the bacteria। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज की बात करें तो इसकी जो टाइप्स है वो उसके दो साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें साइकिल्स मीन्स इसका जो इन्फेक्शन का तरीका है, इसके दो अलग अलग तरीके से ये इन्फेक्शन करता है। एक इन्फेक्शन करता है जिसमें सेल को पूरा बर्स्ट कर देता है, खत्म कर देता है, और जो दूसरा इन्फेक्शन ये जो करता है जिसमें क्या होता है कि उसके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है और फिर इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दो होते हैं, एक होता है वायरुलेंट जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसको खत्म कर देता है, किल कर देता है, ठीक है, केपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन एंड इवेंचुअली डिस्ट्रक्शन एंड द डेथ ऑफ बैक्टीरियल सेल, एंड दीज फॉलोड बाय द लैक्टिक साइकिल से फॉलोड होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है T4 होस्ट इकोलाई, ओके। T4 इसका एग्जाम्पल है और इसका जो होस्ट है वो कौन हो जाता है, इकोलाई हो जाता है। इधर लैक्टिक का मतलब होता है किल कर देना, बैक्टीरिया को किल कर देता है ये, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है टेम्परेट टाइप। टेम्परेट में क्या होता है, डज नॉट डिस्टर्ब इन्फेक्शन, मतलब कि उसको किल नहीं करता है, ये उसको किल करने की बजाय ये डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब डीएनए के साथ में ये जुड़ जाता है और फिर उसी के साथ में बैक्टीरिया डीएनए के साथ में ये वायरस का डीएनए जुड़ के और उसके साथ ये रेप्लिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल है लैम्डा फेज, ओके। दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज। नाउ come to know that is the type of transduction. There is two type of transduction. First is generalized transduction, second one is the specialized। जनरलाइज में क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में लैक्टिक प्रोसेस के थ्रू। लैक्टिक बैक्टीरियोफाज के थ्रू मीन्स वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज के थ्रू, जिसमें बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, किल हो जाता है, उसकी लाइसिस हो जाती है, बैक्टीरिया के टुकड़े हो जाते हैं। दैट इज नाउ केयरिंग द डोनर बैक्टीरियल डीएनए, जिसमें बैक्टीरियल डीएनए जो बैक्टीरियल जो डीएनए है वो डोनर हो जाता है ड्यू टू एरर इन द मैच्योरेशन विद द लैक्टिक लाइफ साइकिल्स, ओके। मतलब इसकी वजह से जो है उसमें लैक्टिक लाइफ साइकिल्स अकर होती है, okay। Now there are the few steps in which this processes occur। First step is a bacteriophage adherence to the susceptible bacteria। जैसे कि ये आपका जर्नलाइज ट्रांसडक्शन में पहला स्टेप है, जिसमें कि ये बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड है, बैक्टीरियल का डीएनए है। ये पूरी येलो लाइन से जो शो हो रही है बैक्टीरियल सेल है, ऊपर ये बैक्टीरियोफाज आया जिसका ये बैक्टीरियल डीएनए है, जिसको वायरल जीनोम भी कहते हैं या बैक्टीरियल फाज का डीएनए, और ये जो है हमारा ये वाला बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियोफाज आके इसकी बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हुआ। अटैच होने के बाद में सेकेंड स्टेप में इसमें क्या किया, इसने बैक्टीरियोफाज ने अपना जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर रिलीज कर दिया,
उसके बाद बैक्टीरियोफाज चला गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसने जो बैक्टीरियोफाज ने अपना वायरल डीएनए यहाँ पे जो रिलीज किया था वो मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह होके उसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, गलती से या एक एरर के थ्रू या इसी की वजह से इसको ट्रांसडक्शन कहा गया है। मतलब इसमें क्या होता है कि गलती से इसमें जो बैक्टीरियल जो डीएनए होता है वो एक फाज के अंदर इन्फेक्ट हो जाता है, एक फाज के अंदर वो घुस जाता है। बैक्टीरियल डीएनए है वो एक फाज के अंदर घुस जाता है, तो मतलब फाज केयरिंग दी बैक्टीरियल डीएनए, और बाकी सारे ये जो है वो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। जब भी वायरल जीनोम आता है तो वो बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है, फिर अपना डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन वगैरह बनाता है। उसके बाद जब उसके जो टुकड़े होते हैं बैक्टीरियल डीएनए के, वो अगर गलती से किसी फाज के अंदर घुस जाए तो वो क्या कहलाता है, फाज के वो जो फाज है वो क्या कहलाएगा, फाज केयरिंग बैक्टीरियल डीएनए कहलाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, वो जब ये लाइसिस होता है, जब ये बहुत सारे हो जाते हैं, सेल बर्स्ट हो जाता है, तो ये जो फाज है जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है वो एक डोनर बैक्टीरियम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने इसकी जनरलाइज में डेफिनेशन में देखा था कि जो बैक्टीरिया का डीएनए वो डोनर बैक्टीरियम के अंदर चला गया, बैक्टीरियोफाज के अंदर। अब ये जो बैक्टीरियोफाज है फिर वो ये जो बैक्टीरियोफाज है फिर वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसमें डोनर बैक्टीरियल डीएनए आ गया वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये एक अनादर बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज आया जिसमें बैक्टीरियल का डीएनए था, पहले वाले बैक्टीरियल का डीएनए था, बैक्टीरियोफाज आके अटैच हुआ। ये क्या हमारा रिसिपिएंट बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड है, ठीक है, जो अभी वाला है वो है। सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है कि जब इसका जो जीनोम है, जो डोनर बैक्टीरियल डीएनए वो अंदर आ जाता है, तो लास्ट स्टेप में ये जो डोनर बैक्टीरियम डीएनए जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके साथ ये अटैच हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन, जिसमें कि कैसे एक डीएनए जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हुआ। ये जो प्रोसेस है ये जर्नलाइज्ड प्रोसेस है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में दे रखा है, अ डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर। एक डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में लाइटिक फ्री इलेक्ट्रोफाइजेस के थ्रू, जिसमें बाय चांस या एरर के थ्रू बैक्टीरियल डोनर का बैक्टीरियल डीएनए आ जाता है, और फिर उसकी लैक्टिक होकर जब वो दूसरे को इन्फेक्ट करता है तो वो इस तरीके से उसका जो डीएनए है वो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। दिस इज द वे एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन इज नोन एज जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन जो है वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में तो जाता है, पर इसमें क्या होता है कि बाय द टेम्पलेट बैक्टीरियोफाज, टेम्पलेट मतलब कि पहले वो जो वायरल डीएनए है, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए वो बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा, फिर वो टूटेगा, थोड़े टाइम तक वैसे ही अटैच रहेगा, फिर वो टूटेगा तो उसमें जो बैक्टीरिया डीएनए आता है, मैं इसको डायग्रामेटिकली मैं इसको समझाती हूँ कैसे, कि ये हमारा बैक्टीरिया है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की बात करें, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए, और ये हमारा बैक्टीरियोफाज, इसने अपना जीनोम जो है फाज के मतलब बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, फाज का जीनोम बैक्टीरिया के अंदर आएगा। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, ये जो फाज का जो जीनोम था वो उस बैक्टीरिया के साथ जिसको इसने इन्फेक्ट किया उसके साथ वो कंबाइंड हो जाएगा, यहाँ पे ये कंबाइंड हो जाएगा और क्या बना देगा, प्रोफेज बना देगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब ये लाइसिस होगा तो इसका जो डीएनए, जब ये लाइसिस होगा तो ये बैक्टीरिया का कुछ पार्ट लेके लाइसिस होगा, जैसे कि ये फास्ट डीएनए हो गया, here you can see easily that is a fast DNA and it one this is the fast DNA and this is the fast DNA and this is the रेसिपिटेंट ऑफ डोनर डीएनए। मतलब इसमें फास्ट का डीएनए तो है, वायरल का डीएनए तो है, इसके साथ साथ इसमें डोनर का भी डीएनए है। ये ट्रांसलेशन से प्रोटीन वगैरह बनाएंगे तो इसका जो हर किसी में फास्ट डीएनए भी आएगा और डोनर का भी डीएनए आएगा। ठीक है, जब ये दूसरे को इन्फेक्ट करेगा तो अपना दोनों लेके जाएगा, बैक्टीरिया का भी और फास्ट का भी, तो इसमें दोनों इसमें इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। लास्ट वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो इसको स्पेशलाइज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पूरा जो डीएनए है वो नहीं जाता, इसमें कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ही है डीएनए का, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है
एक बैक्टीरिया के डीएनए का जो कि ट्रांसफर हो रहा है दूसरे सेल के अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। इसकी वजह से हमने इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, राइट। In specialized transduction, the phase inserts its genome at the specific site. जो phase है वो अपना जीनोम स्पेसिफिक साइट पे करता है, जिससे वो जब इसका वो लाइसिस हो, जब वो टूटे तो उसका कुछ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया डीएनए का कुछ स्पेशल पार्ट है, स्पेसिफिक साइट वाला पार्ट ही आए। So this is the whole process of transduction. Now come to the significance of transduction. Then what is the use and what is the significances? In transfer the genetic material from one bacteria to another and alter the genetic character. मतलब ये ट्रांसफर करने के भी काम आता है और जेनेटिक कैरेक्टर को ऑल्टर करने के भी काम आ रहा है। इस जैसे कि हमने स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में देखा, अगर हम इसका एग्जांपल लेके देखें तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जेल जीन होता है, ठीक है। अ सेल लैकिंग एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द गैलेक्टोज, मतलब एक सेल है जिसकी जो गैलेक्टोज है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, तो उसने उसका जो जीन है गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज करने का, उसने वो दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू ले लिया। तो ये हो गया हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ये इसमें हेल्प कर रहा है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है बिटवीन दी प्रोफेज एंड होस्ट बैक्टीरियल डीएनए। जब भी प्रोफेज बनता है, मतलब जब भी हमारा टेम्पलेट वाला जो बनता है उसमें इवोल्यूशनरी चलता है, उसमें ये बताता है कि भाई ये वायरल डीएनए है, ये उसके बैक्टीरिया का है और उससे पहले उसने जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया उस बैक्टीरिया का आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेज कैन एग्जिस्ट इन सेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड सजेस्ट अ सिमिलर पॉसिबल मैकेनिज्म, मतलब जो प्रोफेज है वो बहुत लंबे समय तक उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वायरल डीएनए कंबाइंड रह सकता है, जिसको हम प्रोफेज कहते हैं। वो उस लंबे समय तक उस बैक्टीरिया के अंदर रह सकता है, ठीक है। और अगर वो लंबे समय तक रहता है तो वायरल ओरिजिन में कैसा हो जाता है, कैंसर टाइप का हो जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक वे प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसडक्शन एक वे प्रोवाइड कर रहा है टू द स्टडी ऑफ जीन लिंकेज, जीन लिंकेज को पढ़ने की एक स्टडी को ये वे प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसडक्शन।